السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 42 شہر کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں انا یوسف اور میں ہوں ریحان طارق۔ سب سے پہلے ایک نظر اب تک کی ٹاپ سٹوریز پر۔ محکمہ ماحولیات کی ٹیم کا اراکین پنجاب اسمبلی کی سربراہی میں مختلف مقامات پر چھاپا۔ سید پور گریڈ اسٹیشن اور حافظ سویٹس کے کارخانے سے ڈینگی لاروہ برآمد کر لیا۔ مالکان کے خلاف پرچہ درج کرا دیا گیا۔ ڈینگی کا بڑھتا ہوا خطرہ۔ ڈینگی کنٹرول پروگرام کی ختم کی گئی 344 سیٹیں بحال کرنے کے لیے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کو سمری ارسال کر دی گئی۔ اسمبلی اجلاس میں کل کے واقعات پر اپوزیشن اور حکومتی اراکین میں گرما گرمی۔ دونوں اطراف سے ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی۔ صحافیوں پر تشدد کے ملزمان حوالے کرنے کے لیے تحریک انصاف نے مہلت مانگی تھی۔ حوالے نہ کیے تو کارروائی کریں گے۔ صوبائی وزیر رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو۔ پنجاب یونین آف جرنلسٹ کا فیصل چوک میں نجی ٹی وی چینل پر مقدمہ اور کیمرہ مین پر تشدد کے خلاف دھرنا۔ اگر گرفتاریاں دینا پڑی تو اعلیٰ عدلیہ کے دروازے پر جا کر دیں گے، صحافیوں کا اعلان۔ تحریک انصاف کی جماعت میڈیا پر تشدد کی مذمت اور معذرت ہی نہیں کرتی بلکہ قانونی کارروائی میں مکمل تعاون کا یقین بھی دلاتی ہے۔ سٹی 42 کے پروگرام نیوز نائٹ میں پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما بیرسٹر حماد اظہر کی گفتگو۔ ریجنل ٹیکس آفس 2 نے انکم ٹیکس کی عدم ادائیگی پر پنجاب امپلائیز سوشل سیکیورٹی کے 10 بینک اکاؤنٹ منجمد کر کے 5.5 کروڑ کی ریکوری کر لی۔ لیسکو سب ڈویژن مصطفیٰ آباد کا تھانہ نولکھا پولیس کے ہمراہ بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ میٹر کی رفتار کم کر کے بجلی چوری کرنے والے 3 افراد گرفتار، جبکہ معاونت پر 5 میٹر ریڈر بھی دھر لیا۔ نادرا ایگزیکٹو سینٹرل لبرٹی کی بجلی گھنٹوں بند، عملہ دفتر سے غائب، سائلین انتظار کر کے گھروں کو لوٹ گئے۔ سیوریج سسٹم کئی روز سے خراب ہونے پر شاہ جمال کالونی کے رہائشیوں کا احتجاج، واسطہ حکام کی چشم پوشی۔ ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے ہاؤس آفیسر کی 199 سیٹیں ختم کرنے کے خلاف جنرل ہسپتال میں 5ویں روز بھی احتجاج، ایمرجنسی بلاک تک احتجاجی ریلی۔ شالامار ہسپتال میں جدید مشینری اور کیس لیب سے آراستہ کارڈیک سینٹر قائم کیا جائے گا۔ ہسپتال انتظامیہ اور بین الاقوامی کمپنی کے مابین مشینری کی فراہمی کا معاہدہ طے پا گیا۔ لاہور بورڈ نے نہم جماعت کے طالب علم محمد فیضان کو غیر حاضر ہونے کے باوجود پاس کرنے کی غلطی کو تسلیم کر لیا۔ نتائج مرتب کرنے والے ممتحن کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ۔ لاہور بورڈ اس سال انٹرمیڈیٹ کے نتائج کا اعلان 8 ستمبر کی بجائے 23 ستمبر کو 15 روز تاخیر سے کرے گا۔ طلباء پریشانی سے دوچار۔ گورنر پنجاب کا گارڈن ٹاؤن پاسپورٹ آفس کا دورہ، چودھری محمد سرور نے ڈپلومیٹ پاسپورٹ کے اجرا کا عمل مکمل کرایا۔ لاہور ہائی کورٹ میں لگژری ٹیکس کے خلاف دائر درخواست کی سماعت 5 ستمبر تک ملتوی۔ عدالت نے صوبائی حکومت اور محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سے جواب طلب کر دیا۔ عدالتی بیلٹ کا اڈا گڈز ٹرانسپورٹ سبزازان میں چھاپا، 7 روز سے محبوس 3 لڑکے برآمد کر کے عدالت پیش کر دیے۔ وزیر اعظم نواز شریف کے ماموں عبدالحمید بٹ کی ماڈل ٹاؤن میں نماز جنازہ، اہل خانہ سمیت وزراء کی شرکت۔ پاکستان کے پہلے ہلال جرت کے حامل بریگیڈیئر ریٹائرڈ عبدالقیوم کو فوجی اعزاز کے ساتھ ڈیفنس ایس بلاک قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اعلیٰ فوجی افسران اور عزیز و اقارب کی شرکت۔ دارالحجاج لاہور کی تزئین و آرائش کا کام مکمل، وزیر مذہبی امور اور قومی ہم آہنگی سردار محمد یوسف نے ڈائریکٹر حج کے ہمراہ افتتاح کر دیا۔ گورنر پنجاب سے ڈیلی سٹی 42 کے گروپ ایڈیٹر نوید چودھری کی ملاقات، چودھری محمد سرور نے ڈیلی سٹی 42 کے معیار کو سراہا اور کہا کہ سٹی 42 شہر کی آواز ہے۔
मुग़ल आज़म मैरिज हॉल में PTI की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम। PTI के सदर जावेद हाशमी समेत दीगर ओहदेदारों की शिरकत। अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम डेंगू मच्छर के तदारुक के लिए यतीम खाना चौक से स्टीम मोड़ तक वॉक का एहतमाम। यतीम बच्चों समेत मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। प्लेटीज होटल में बैनुल-सूबाई हम आहंगी को फरोग देने के उन्वान से सेमिनार। स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल समेत अपोजिशन और सिंध के अरकान सूबाई असम्बली की शिरकत। सलमान बट भी मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ के नक्शे कदम पर। साबिक कप्तान ने PCB और ICC के बहाली प्रोग्राम पर दस्तखत कर दिए। PCB ने सजायाफ्ता क्रिकेटर को बहाली प्रोग्राम शेड्यूल जारी कर दिया। कौमी जूनियर हॉकी टीम के तरबियती कैंप का दूसरा रोज खिलाड़ियों को एक दूसरे को पास देने और बॉल पर कंट्रोल रखने की खुसूसी तरबियत दी गई। कैनेडियन हाई कमिश्नर का शाही कला का दौरा। मुगलिया दौर की अजीम यादगार की तारीफ। ग्रेट जियोकास का कहना था कि लाहौरी जिंदा दिल हैं। और अलहम्रा आर्ट गैलरी में खत्तात गजन पर अब्बास आसिफ के फनपानों पर मबनी नुमाइश का इफ्तिताह वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी डॉक्टर खलीकुर रहमान ने किया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब बुलेटिन में खबरों की तफसील। महकमा माहौलियात की टीम ने अरकान पंजाब असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर, चौधरी शहबाज और रमजान सिद्दीक भट्टी की सरबराही में छापा मारकर सैदपुर ग्रिड स्टेशन और हाफिज स्वीट्स के कारखाने से डेंगू लार्वा बरामद कर लिया। MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर, चौधरी शहबाज और रमजान सिद्दीक भट्टी ने महकमा माहौलियात की टीम के हमरा मुल्तान रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर डेंगू इंस्पेक्शन सर्वे किया। इस दौरान सैदपुर ग्रिड स्टेशन के 8 मकामात से बड़ी तादाद में डेंगू लार्वा बरामद कर लिया गया, जबकि मुल्तान रोड पर मौजूद हाफिज स्वीट्स के कारखाने से भी डेंगू लार्वा बरामद किया गया। डेंगू की मुमकिना अफजाइश के पेश नज़र फैसल टाउन थाने में अरसा दराज से खड़ी मोटरसाइकिलें और गाड़ियां पुलिस वेयर हाउस भिजवा दी गईं, जबकि मुल्तान रोड शाहनूर स्टूडियो में कायम कस्टम स्टेट वेयर हाउस में भी डेंगू के हवाले से इकदाम किए गए। फैसल टाउन थाने में डेंगू की मुमकिना अफजाइश रोकने के लिए सफाई मुहिम चलाई गई। डेंगू स्प्रे के साथ साथ माले मुकदमा में अरसा दराज से बंद मोटरसाइकिलें और गाड़ियां पुलिस वेयर हाउस भेज दी गईं। इस मौके पर SP मॉडल टाउन तारिक अजीज सिंधु, SHO जुल्फिकार भट्ट भी मौजूद थे। SP का कहना था कि डिवीजन में डेंगू मकाउद मुहिम जारी है और थानों में डेंगू की मुमकिना अफजाइश रोकने के लिए खुसूसी सफाई मुहिम भी चलाई जा रही है। SP ने थाने में सफाई के बेहतर इंतजाम पर मुहर्रर और ईमानदारी से ड्यूटी करने वाले मुहाफिज एहलकारों को CC3 सर्टिफिकेट देने का ऐलान भी किया। यहाँ काफ़ी पानी खड़ा होता था मोटरसाइकिल की टॉप वगैरह में, वहाँ हमने 14 के करीब हमारी मोटरसाइकिलें थी, गाड़ियाँ थी। अभी हमारे SP साहब भी आए थे, उनकी निगरानी में हमने ये सारा सामान इकट्ठा करके वेयर हाउस में इसको हम भिजवा रहे हैं। उधर कस्टम स्टेट वेयर हाउस में बहके सरकार जब्त किए गए स्मगल शुदा टायर्स, सामान और गाड़ियों में डेंगू की अफजाइश रोकने के लिए भरपूर मुहिम चलाई गई। कस्टम हुकाम ने 35 टन स्क्रैप उठवा दिया, जबकि स्टेट वेयर हाउस के सहन में खड़ी गाड़ियों के शीशे पॉलिथीन बैग से ढांप दिए गए। कस्टम हुकाम ने ओपन टायर्स और दीगर सामान को प्लास्टिक कवर के जरिए ढांप दिया है। डेंगू का बढ़ता हुआ खतरा। डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम की खत्म की गई 344 सीटें बहाल करने के लिए समरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को अरसाल कर दी गई है, जबकि डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम में शेखुपुरा को भी शामिल करने का फैसला किया गया है। डेंगू वबा के खतरे के पेश नज़र महकमा सेहत की दरख्वास्त पर महकमा खजाना ने डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम की रवा माली साल के दौरान लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में फील्ड स्टाफ की PND की जानिब से खत्म की गई 344 सीटों को बहाल करने का फैसला किया है। अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम डेंगू मच्छर के तदारुक और शहरियों की आगाही के लिए यतीम खाना चौक से स्कीम मोड़ तक वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें यतीम बच्चों समेत मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। वॉक की क़यादत अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान पंजाब के सेक्रेटरी इकरामुल हक सुबहानी ने की। इस मौके पर यतीम बच्चों ने डेंगू मच्छर के तदारुक और शहरियों की आगाही के लिए हाथों में प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। रीजनल टैक्स ऑफिस 2 ने इनकम टैक्स की अदम अदायगी पर पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी के 10 बैंक अकाउंट्स मुंजमद करके 5.5 करोड़ रुपए की बराह रास्त रिकवरी कर ली है। FBR हुकाम के मुताबिक पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी के ज़िम्मे माली साल 2003 से 2006 तक का इनकम टैक्स वाजिबुल अदा था। पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी पर बैंकों में रखवाई गई रकूम से मिलने वाले मुनाफे पर
7.5 करोड़ रुपए इनकम टैक्स वाजिबुल अदा था। लेस्को सब डिवीजन मुस्तफाबाद का थाना नौलखा पुलिस के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। मीटर की रफ्तार कम करके बिजली चोरी करने वाले 3 अफराद गिरफ्तार, जबकि मुआवनत पर 5 मीटर रीडर्स भी धर लिए गए। नौलखा पुलिस के मुताबिक उन्होंने चंद रोज कबल बिजली चोरी की वारदातों में मुलव्विस शालीमार टाउन के रिहायशी 2 मुलजिमान राहील और आरिफ को गिरफ्तार किया था। लेस्को सब डिवीजन मुस्तफाबाद और नौलखा पुलिस ने मुलजिमान की निशानदही पर धर्मपुरा और मुस्तफाबाद में छापे मारकर बिजली चोरी में मुलव्विस 2 दुकानदारों जाहिद महमूद और मोहम्मद साबिर, जबकि घर के मीटर की रफ्तार कम करने पर नज़ीर अहमद को गिरफ्तार कर लिया। नादरा एग्जीक्यूटिव सेंट्रल लिबर्टी की बिजली घंटों बंद रही। बिजली बंद होने से अमला दफ्तर से गायब हो गया, जिससे साइलिन को भी मजबूरन घरों को लौटना पड़ा। नादरा एग्जीक्यूटिव सेंट्रल लिबर्टी की बिजली घंटों बंद रहने से काम में तातुल के बायस साइलिन का रश लग गया। नादरा एग्जीक्यूटिव सेंट्रल का जनरेटर खराब होने से शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आए हुए साइलिन शदीद मुश्किलात से दो चार रहे। बिजली घंटों तक बहाल न होने पर नादरा एग्जीक्यूटिव सेंट्रल ऑफिस का अमला भी मौके से गायब हो गया। शाहजमाल कॉलोनी में कई दिन से जमा सीवरेज का पानी निकाला नहीं जा सका, जिस पर अहले इलाका ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस एहतजाज के हवाले से मजीद जानते हैं रेहान गुल की इस रिपोर्ट में। शाहजमाल कॉलोनी में सीवरेज सिस्टम खराब होने के बायस गटरों का गंदा पानी कई दिनों से गलियों में जमा है, जिसके बायस न सिर्फ अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना है, बल्कि इलाके में बीमारियां भी जन्म ले रही हैं, जिस पर शाहजमाल कॉलोनी के रहायशियों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि गंदे पानी के बायस नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रोज़ाना पानी निकला था गटरों का, और ये आप हालत देख रहे हैं इसकी, तो अगर मस्जिद वगैरह में नमाज़ पढ़ने भी जाना हो तो बहुत मुश्किल है। और ये आपको पता है हल्का है, 122 है, कौमी असम्बली के स्पीकर है, और उनका उस हल्के का ये हाल है, तो बाकी आप लाहौर का क्या कह सकते हैं। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि वासा हुकाम को कई बार आगाह किया, मगर अभी तक उनका मसला हल नहीं हुआ। 4 दिन हो गया मुसलसल उनसे राब्ते में है, लेकिन अभी तक कोई उन्होंने जी आ रहे हैं, और ना बारिश अभी 3-4 दिन से हो रही है, और ये गटरों के पानी का ये हाल है। अवामी नुमाइंदे अवाम के वोटों से कामयाब होकर ऐवान में पहुंच चुके हैं। उनको चाहिए कि अब अपने इंतखाबी वादों के मुताबिक हल्के के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करवाएं। कैमरामैन सज्जाद अहमद के साथ रेहान गुल, सिटी 42। कीचड़ से लथपथ गलियां और गलाजत उगलते गटर, टूटी फूटी सड़कें, वफाकी कॉलोनी मसाइलिस्तान बन गई है। वकीलों का कहना है कि दरख्वास्तें देने के बावजूद पाक पीडब्ल्यू हुकाम के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। मजीद बता रहे हैं रिजवान नकवी इस रिपोर्ट में। ये गलाजत से अटी वफाकी कॉलोनी है। यहाँ वफाकी महकमों के मुलाजमीन रिहायश पजीर हैं। सड़कें शिकस्त व रेख का शिकार होने के सबब अमूमन कीचड़ से लथपथ रहती हैं। मकीनों का कहना है कि घरों की मरम्मत और देखभाल के नाम पर माहाना फंड्स बाकायदगी से वसूल किए जाते हैं, तहम ये फंड्स कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। वफाकी कॉलोनी की गलियाँ जुबान हाल से ये कहानी सुना रही हैं। बारिश होती है तो सीवरेज के बंद जो गलियाँ हैं या तो गुजर ही नहीं सकते हम, और गंद है, कूड़े वाले आते नहीं हैं। ये हशर है हमारी कॉलोनी का। इतना यहाँ पे गंदगी और ये पानी खड़ा हो जाता है ना कि यहाँ पे अभी चलना दुश्वार हो जाता है, मस्जिद में लोगों का जाना दुश्वार है। वफाकी कॉलोनी में मसाजिद के सामने खड़े गलीज पानी की वजह से नमाजियों को भी शदीद जहनी अजियत से गुजरना पड़ता है, जबकि मूजी अमराज फैलने का भी खदशा है। इतना तफन फैला हुआ है, ये साथ ही मेरा घर है। रात को जब बस थोड़ा सा होता है तो 1 मिनट के लिए भी अंदर बैठना भी मुश्किल हो जाता है, और बच्चे बीमार रहते हैं अक्सर। कोई स्प्रे के लिए आया, मैंने उनको भी टेलीफोन किया है, उनकी कंप्लेंट नंबर भी मेरे पास है 1334 को, लेकिन कोई आदमी नहीं आया। मकीनों का कहना है कि पानी के जौहर में डेंगी लार्वा की बड़े पैमाने पर मौजूदगी का इम्कान है। वो मुतादिद मरतबा डेंगी तदारुक के लिए दी गई हेल्पलाइन पर भी कॉल्स कर चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। कैमरामैन रिजवान अली के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। लाहौर बोर्ड ने नहम जमात के उम्मीदवार मोहम्मद फैजान को मुतालिया पाकिस्तान के मजमून में गैर हाजिर होने के बावजूद पास करने की गलती को तस्लीम कर लिया। नताइज मुरतब करने वाले मुम्तहन के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला। लाहौर बोर्ड के कंट्रोलर इम्तहानात अनवर फारूक ने सिटी 42 पर नशर होने वाली खबर को दुरुस्त करार देते हुए अपनी गलती को तस्लीम कर लिया है। अनवर फारूक का कहना है कि मोहम्मद फैजान ने 4,84,783 रोल नंबर के तहत नहम के इम्तहानात में शिरकत की थी, ताहम वो मुतालिया पाकिस्तान के पर्चे में गैर हाजिर रहा। लाहौर तालीमी बोर्ड इस साल इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान 15 रोज ताखीर से करेगा। तलबा का कहना है कि रिजल्ट में ताखीर के बायस न सिर्फ उन्हें यूनिवर्सिटीज में दाखिले लेट मिलेंगे, बल्कि आइंदा साल पढ़ाई का कम वक्त मिलने से उनके ग्रेड्स भी खराब हो सकते हैं।
लाहौर बोर्ड इंटरमीडिएट के नतायज का ऐलान 23 सितंबर को करेगा, जबकि बोर्ड हुकाम ने साल 2012 में इंटरमीडिएट के नतायज का ऐलान 8 सितंबर को कर दिया था। रवां साल इंटरमीडिएट के नतायज का ऐलान 15 रोज ताखीर से किए जाने पर तलबा में शदीद तशवीश पाई जाती है और उनका कहना है कि बोर्ड हुकाम की जानिब से नतायज में ताखीर से न सिर्फ उन्हें यूनिवर्सिटियों में दाखिले लेट मिलेंगे, जिससे आइंदा साल उन्हें पढ़ाई का कम वक्त मिलेगा। दूसरी जानिब कंट्रोलर इम्तहानात अनवर फारूक ने इंटरमीडिएट के नतायज में ताखीर की तमाम तर जिम्मेदारियां इलेक्शन पर डाल दी हैं। उनका कहना है कि इंतखाबात 2013 की वजह से इंटरमीडिएट के इम्तहानात 15 रोज ताखीर से लिए गए थे, जिसके बायस नतायज का ऐलान भी 15 रोज ताखीर से किया जा रहा है। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी 42। यंग डॉक्टर्स की जानिब से हाउस ऑफिसर की 199 सीटें खत्म करने के खिलाफ जनरल अस्पताल में 5वें रोज भी एहतजाज किया गया। आउटडोर के सामने नौजवान डॉक्टर्स की जबरदस्त नारेबाजी, इमरजेंसी ब्लॉक तक एहतजाजी रैली भी निकाली। हमारी सीटें बहाल करो, हमारी सीटें बहाल करो, we want justice, we want justice। महकमा सेहत ने जनरल अस्पताल समेत दीगर सरकारी अस्पतालों में हाउस ऑफिसर की 199 सीटें खत्म की हैं, जिस पर 5 रोज से नौजवान डॉक्टर्स जनरल अस्पताल में सरापाए एहतजाज हैं। YDA के सूबाई सदर डॉक्टर मलिक जावेद आहिर, डॉक्टर उस्मान मान, डॉक्टर अबूबकर गोंदल, डॉक्टर राय अहमद समेत यंग डॉक्टर्स की बड़ी तादाद जनरल अस्पताल के आउटडोर ब्लॉक के मरकजी दरवाजे पर जमा हुई और हाउस ऑफिसर की सीटों के खात्मे के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई। नौजवान डॉक्टर्स के एहतजाज से आउटडोर में ऑफिसर्स की सीटें खत्म करना कतई दुरुस्त इकदाम नहीं है, इसलिए हुकूमत इस फैसले को वापस ले और सीटें फौरी बहाल की जाएं। नौजवान डॉक्टर्स ने आउटडोर से इमरजेंसी ब्लॉक तक एहतजाजी रैली भी निकाली। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से ऐलान किया गया कि अगर मसला हल न हुआ तो चंद रोज में YDA एहतजाज के नए लाहे अमल का ऐलान करेगी। दूसरी जानिब सेक्रेटरी हेल्थ मलिक हसन इकबाल ने सिटी 42 को बताया कि उन्होंने यंग डॉक्टर्स के मुतालबात पर हाउस ऑफिसर की 199 आसामियों की बहाली की समरी महकमा खजाना को इरसाल की है, लेकिन महकमा खजाना ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं किया। ये समरी महकमा खजाना से होती हुई महकमा रेगुलेशन, फिर चीफ सेक्रेटरी और आखिर में वजीर आला के पास जाएगी, लेकिन यंग डॉक्टर्स के मुतालबात की ये समरी अभी तक महकमा खजाना में है। दारुल जाज लाहौर की तज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल हो गया है। वजीर मजहबी अमूर कौमी आहंगी सरदार मोहम्मद यूसुफ ने डायरेक्टर हज के हमरा इफ्तिताह कर दिया। वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने 17 जुलाई को हाजी कैंप का दौरा किया था। इन दिनों बारिशों की वजह से दारुल हजाज की इमारत सैलाब का मंजर पेश कर रही थी और कमरे बोसीदा हो चुके थे, जिस पर उन्होंने 15 सितंबर तक इमारत की तज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल करने की हदायत की। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जारी कशीदगी कम न हो सकी। सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ को खबरदार किया है कि सहाफ़ियों पर तशद्दुद करने वालों को गिरफ्तार ना करवाया गया तो पुलिस खुद उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। मियां महमूद रशीद ने इल्जाम आयद किया है कि तशद्दुद करने वाले PTI के नहीं बल्कि राना सनाउल्लाह के लोग हैं। अली अकबर की रिपोर्ट। स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों और लीडरों की गिरफ्तारी के खिलाफ ईवान में पीर के रोज पेश होने वाली तहरीक इल्तवाकार पर बात करने की इजाजत तलब की, तो स्पीकर ने उन्हें बताया कि असम्बली के कवायद के मुताबिक वो इस पर बात नहीं कर सकते, जिस पर हुकूमती और अपोजिशन मेंबरान के दरमियान नोक झोंक शुरू हो गई। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने सहाफियों पर जो तशद्दुद किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि सहाफियों पर तशद्दुद के इल्जाम में तहरीक इंसाफ के रहनुमा इजाज चौधरी और दर्जनों कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। अपोजिशन लीडर नामजद मुल्जिमान को गिरफ्तार करवाएं वरना पुलिस खुद कार्रवाई करेगी। राना सनाउल्लाह के रिमार्क्स पर अपोजिशन मेंबरान ने ईवान में एहतजाज शुरू कर दिया, जिसके बाद हुकूमती मेंबरान ने भी अपोजिशन के खिलाफ नारेबाजी की। हुकूमती रुकन रुखसाना कोकब की जानिब से तहरीक इंसाफ के खिलाफ ईवान में प्ले कार्ड लहराने पर स्पीकर ने उन्हें 5 मिनट के लिए ईवान से बाहर निकाल दिया। अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद ने ARY न्यूज के खिलाफ बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से मुकदमा दर्ज करने की मजम्मत की। अपोजिशन लीडर ने कहा कि वो सहाफियों से तशद्दुद पर माफी मांग चुके हैं, जबकि तहरीक इंसाफ खुद भी इस मामले की इंक्वायरी कर रही है। कैमरामैन अली नुमान के साथ अली अकबर, सिटी 42। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम माल रोड फैसल चौक में ARY पर मुकदमे के इंदराज और फैसल चौक में कैपिटल TV के कैमरामैन पर तशद्दुद के खिलाफ धरना। सहाफ़ी रहनुमाओं ने ऐलान किया कि अगर गिरफ्तारियां देना पड़ी तो आला अदलिया के दरवाजे पर जाकर देंगे। PUJ ने PFUJ की हिदायत पर माल रोड पर धरना दिया, जिसमें सहाफ़ियों के अलावा सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की।
لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری نے کہا ہے کہ میڈیا پر حملہ کرنے والے پی ٹی آئی کے کارکن آہنی ڈنڈوں سے مسلح تھے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ تحریک انصاف پنجاب کے صدر کو بھی گرفتار کر کے شامل تفتیش کیا جائے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے مرکزی رہنما بیرسٹر حماد اظہر کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت میڈیا پر تشدد کی مذمت اور معذرت ہی نہیں بلکہ قانونی کارروائی میں مکمل تعاون کا یقین بھی دلاتی ہے۔ سٹی 42 کے پروگرام نیوز نائٹ میں صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری نے کہا کہ ان کے پاس میڈیا کے لوگوں پر تشدد کرتے ہوئے گنڈوں کی تصویریں اور فوٹیج موجود ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے ریجنل پاسپورٹ آفس گارڈن ٹاؤن میں ڈپلومیٹ پاسپورٹ کے اجرا کا عمل مکمل کروایا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور جب ریجنل پاسپورٹ آفس گارڈن ٹاؤن پہنچے تو ڈپٹی ڈائریکٹر اخلاق احمد قریشی نے ان کا استقبال کیا۔ گورنر پنجاب نے گرین پاسپورٹ کی بنیاد پر ڈپلومیٹ پاسپورٹ کے اجرا کا عمل مکمل کروایا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر کی جانب سے شہریوں کے لیے کیے گئے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا اور بہترین سہولتیں فراہم کرنے پر ان کی کاوشوں کو سراہا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے ڈیلی سٹی 42 کے گروپ ایڈیٹر نوید چودھری اور چیئرمین ریڈ کریسنٹ میجر جنرل ریٹائرڈ محمد نواز خان نے علیحدہ ملاقات کی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے ڈیلی سٹی 42 کے گروپ ایڈیٹر نوید چودھری نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی۔ نوید چودھری نے عہدہ سنبھالنے پر گورنر پنجاب کو مبارکباد دی اور اپنی کتاب بہت کام رفو کا نکلا پیش کی۔ چودھری محمد سرور نے ڈیلی سٹی 42 کے معیار کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ سٹی 42 شہر کی آواز ہے اور عوامی مسائل کو بہترین انداز میں نہ صرف اجاگر کرتا ہے بلکہ مسائل کے حل بھی بتاتا ہے۔ ملاقات کے دوران صوبے میں تعلیمی اصلاحات کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر چودھری محمد سرور نے بتایا کہ نہ صرف اسکولوں کا معیار بہتر بنایا جائے گا بلکہ شرائع خواندگی بھی بڑھائی جائے۔ اس حوالے سے انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں۔ دوسری جانب گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں چیئرمین ریڈ کریسنٹ میجر جنرل ریٹائرڈ نواز خان نے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کو ریڈ کریسنٹ کی کارکردگی کے حوالے سے بریفنگ دی۔ اس موقع پر گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ مصیبت زدہ علاقوں میں ریڈ کریسنٹ کا فلاحی کردار قابل ستائش ہے، جبکہ اس موقع پر طارق محمد پاشا سمیت دیگر افراد بھی موجود تھے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے 14 رکنی وفد نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں ایم ایس ایف کے مرکزی صدر اور ایم پی رانا محمد ارشد سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر گورنر پنجاب نے کہا کہ صوبے میں ترقی اور ملک کی خوشحالی کے لیے ہمیں مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کو تعلیم دلوانا اور انہیں صاف پانی کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کے ماموں عبدالحمید بٹ کی نماز جنازہ میں گورنر پنجاب اور اسپیکر پنجاب اسمبلی سمیت اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کے ماموں عبدالحمید بٹ اتفاق اسپتال میں زیر علاج تھے، جو منگل کی صبح انتقال کر گئے۔ مرحوم عبدالحمید بٹ کی میت کو ایمبولینس کے ذریعے اتفاق مسجد سے ملحق پارک میں نماز جنازہ کے لیے لے جایا گیا، جہاں مفتی انتخاب احمد نے مرحوم کی نماز جنازہ پڑھائی، جس میں میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف، میاں حمزہ شہباز، گورنر پنجاب چودھری سرور، اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا محمد اقبال خان، وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار، سابق ضلع ناظم میاں عامر محمود، چودھری منیر، صوبائی وزیر چودھری شیر علی، رکن صوبائی اسمبلی سیف الملوک کھوکھر، خواجہ عمران نذیر، چودھری شہباز، رمضان صدیق بھٹی، ماجد ظہور، رانا ارشد اور علی اصغر مینڈا نے شرکت کی۔ جنازے میں خواجہ سلمان رفیق، ارشد خان لودھی، حاجی حنیف، سید سرفراز حیدر شاہ، سردار خالد ملک، میاں اسلم، غلام حسین شاعر، ملک فرقان، جواد صدیق، خواجہ صلاح الدین، پیر عبدالظاہر چشتی، خان بیگ، میاں عدنان، عطا اللہ بٹ، صلاح الدین پپی، خواجہ احمد حسان، عتیق بٹ، عرفان ملک، محمد علی میاں، سہیل بٹ، چودھری سعود مجید، رانا مبشر، جی ایم سکندر، امداد اللہ بوسال، جاوید اسلم، اعظم خان نیازی، بابر بٹ، سینئر صحافی مجید نظامی، احسن لطیف، احمد الحسن اور ڈاکٹر رانا منور علی سمیت اہم سیاسی اور سماجی شخصیات بھی بڑی تعداد میں موجود تھیں۔ ادھر مرحوم عبدالحمید بٹ کی رہائش گاہ پر تعزیت کرنے والوں کا تانتا بدا رہا۔ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی والدہ بیگم کلثوم نواز، مریم نواز اور دیگر اہل خانہ کو آنے والے افراد تعزیت پیش کرتے رہے۔ مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے رسم قل ماڈل ٹاؤن میں جمعرات کے روز 5 بجے ادا کی جائے گی۔ 1965 کی جنگ کے ہیرو اور ہلال جرأت حاصل کرنے والے پاکستان کے پہلے بریگیڈیئر ریٹائرڈ عبدالقیوم شیر کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ تدفین کے موقع پر اعلیٰ فوجی افسران اور عزیز و اقارب نے شرکت کی۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ عبدالقیوم شیر کی نماز جنازہ جامعہ مسجد ڈیفنس چوک میں ادا کی گئی، جس کے بعد تدفین کے لیے میت کو ایس بلاک قبرستان میں لے جایا گیا۔ تدفین کے موقع پر سابق ڈی جی رینجرز میجر جنرل ریٹائرڈ سلیم اللہ، میجر جنرل طارق حمید، کرنل سلیم اختر،
ब्रिगेडियर नजीब, 11 बलोच रेजिमेंट के एहलकारों और मरहूम के अजीज व अकारिब ने शिरकत की। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी 42। साबिक कप्तान सलमान बट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ICC की बहाली प्रोग्राम के लेटर पर दस्तखत कर दिए। PCB ने सजा याफ्ता क्रिकेटर को बहाली प्रोग्राम का शेड्यूल जारी कर दिया। स्पॉट फिक्सिंग केस में बरतानवी अदालत से सजा याफ्ता कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलमान बट ने भी मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ के नक्शे कदम पर चलते हुए बहाली प्रोग्राम के लिए क्रिकेट बोर्ड से मदद मांग ली है। कौमी जूनियर हॉकी टीम के तरबियती कैंप के दूसरे रोज खिलाड़ियों को एक दूसरे को पास देने और बॉल पर कंट्रोल रखने की खुसूसी तरबियत दी गई। नेशनल हॉकी स्टेडियम में जारी जूनियर हॉकी टीम के तरबियती कैंप में 24 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। मलेशिया में होने वाले सुल्तान जोहर हॉकी टूर्नामेंट के लिए जारी इस कैंप की निगरानी चीफ कोच राना मुजाहिद जबकि मुआविन कोच दानिश कलीम कर रहे हैं। कैंप के दूसरे रोज खिलाड़ियों को हरीफ डी में जाकर एक दूसरे को पास देने की खुसूसी मशक़ें कराई गई। नाज़रीन, यहाँ ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं कि न्यू कैंपस जफर मार्की में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान PTI के सदर जावेद हाशमी का मोबाइल फोन गुम हो गया है। एक बार फिर आपको आगाह करते चलें कि अब से कुछ देर पहले ईद मिलन पार्टी का एहतमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया गया था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर जावेद हाशमी शिरकत कर रहे थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उनका मोबाइल फोन गुम हो गया। अली रामे वहां पर मौजूद हैं, मजीद अपडेट्स हम उनसे लेंगे। अली रामे, क्या अपडेट्स हैं आपके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर जावेद हाशमी के मोबाइल फोन के गुम होने के हवाले से? जी यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस में जफर मार्की के नाम से एक हॉल है, वहाँ पर नईम मीर की जानिब से और शब्बीर सियाल की जानिब से तहरीक इंसाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अहदेदारान और अरकान असम्बली और टिकट होल्डर और मीडिया नुमाइंदान के एजाज़ में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया था। और इस पार्टी में और इनकाद में इस तकरीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर जावेद हाशमी, चेयरमैन महमूद कुरैशी, खुर्शीद कसूरी और अपोजिशन लीडर मियां महमूद। जी बहुत शुक्रिया अली रामे हमें अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, बुलेटिन में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। सिंधी पार्लियामेंटेरियंस का 16 रुकनी वफ़द 2 रोज़ा दौरे पर कराची से लाहौर पहुँच गया है। फ्लैटिस होटल में पंजाब और सिंध की सूबाई असम्बलियों के अराकीन का बैनुल सूबाई हम आहंगी को फरोग देने के लिए मुश्तरका सेशन हुआ। मजीद बता रहे हैं आबिद चौधरी। सिंध असम्बली के अरकान PIA की परवाज 302 के जरिए लाहौर पहुंचे। एयरपोर्ट पर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार अली गोरचानी और दीगर लीगी रहनुमाओं ने वफ्द का इस्तकबाल किया। अरकान असम्बली का कहना है कि वो आज़ादी सहाफत के हक में है। दोनों सूबों के दरमियान एक जो है हम आहंगी हो, हम एक दूसरे को समझे, जो मसाइल हैं दोनों सूबों के वो एक दूसरे को बताएं भी कि हमारे दरमियान क्या मसाइल हैं। पहली दफ़ा डेमोक्रेसी से पावर जो है ट्रांसफ़र हुआ है। हम चाहते हैं कि हमेशा ऐसा ही सिलसिला चलता रहे। हम पंजाब वालों वैसे हमारे भाई हैं, आज मिलके सबसे बड़ी खुशी हुई आपसे। हम कभी नहीं चाहेंगे कि सहाफत को रोका जाए और इस तरह शबखून मारा जाए। आपकी जो ड्यूटी है उसको हम हमेशा से तस्लीम करते हैं और आप ही की वजह से मेरे ख्याल में हम उन तमाम हकायक तक पहुंच सकते हैं। जो वफ्द ने फ्लैटिस होटल में बैन सूबाई हम आहंगी के लिए मुनक़िदा सेमिनार में शिरकत की, जिसमें स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल समेत पंजाब और सिंध के अरकान सूबाई असम्बली ने शिरकत की। राना मोहम्मद इकबाल का कहना था कि मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद ने कहा कि मेंबरान असम्बली रिवायती सियासत से हटकर अवाम के लिए कोई किरदार अदा नहीं कर पा रहे। हमारी एक दूसरे सूबे से दूरी जो है उसको ख़त्म होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर इस पाकिस्तान की सही मानों में खिदमत कर पाएं। हम जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जिनको अवाम ने मुंतखब किया है, अभी हम अपना असल रोल अदा नहीं कर पा रहे। एक रवायती अंदाज से असम्बलियाँ चल रही हैं। मैं समझता हूँ कि जो इलेक्टेड नुमाइंदों का असल एम्पावरमेंट मुझे नजर नहीं आती। सिंध असम्बली के अरकान का लाहौर का दौरा अमन व आशती के क़याम में संगे मील साबित होगा। मुस्तकबिल में भी चारों सूबों के अरकान असम्बली को ऐसे दौरों का सिलसिला जारी रखना चाहिए। कैमरामैन ख्वाजा फहीम के साथ आबिद चौधरी, सिटी 42। यहाँ आपको आगाह करते चलें कि अपटमा के इलेक्शंस में गौहर एजाज ग्रुप ने क्लीन स्वीप कर दिया है। एक बार फिर आपको आगाह कर रहे हैं कि अपटमा के इलेक्शंस में पंजाब की सतह पर गौहर एजाज ग्रुप ने क्लीन स्वीप कर दिया है। 13 नशस्तों पर गौहर एजाज ग्रुप के उम्मीदवार बिला मुकाबला
कामयाब हो गए हैं। शहजाद खान अब्दाली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद अपडेट्स उनसे जानेंगे। शहजाद खान अब्दाली, एप्टमा के इलेक्शंस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी रेहान, गौहर एजाज ग्रुप ने मुसलसल 5वें साल भी जो है वो एप्टमा के इलेक्शन में क्लीन स्वीप कर लिया है। इलेक्शन कमिश्नर चौधरी अख्तर की जानिब से जारी किए गए नताइज के मुताबिक पंजाब की कुल 13 सीटों पर गौहर एजाज ग्रुप के तमाम नुमाइंदे जो है वो बिला मुकाबला कामयाब हो गए हैं। इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जो नताइज दिए गए हैं उनके मुताबिक एहसन तनवीर पंजाब एप्टमा के चेयरमैन, इसके साथ साथ सैयद अली एहसान सीनियर वाइस चेयरमैन, शाहिद फराज वड़ाइश वाइस चेयरमैन और इसके साथ। जी बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली हमें अपडेट करने के लिए। कनाडा के हाई कमिश्नर ने शाही कला का दौरा किया और मुग़लिया दौर की अजीम यादगार की तारीफ की। ग्रेग जोकास का कहना था कि लाहौरी वाकई जिंदा दिल हैं, यहाँ के खाने खाकर बहुत मजा आया। शाही कला के दौरे के मौका पर सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कनाडा के हाई कमिश्नर ग्रेग जोकास का कहना था कि शाही कला मुग़लिया दौर की अजीम यादगार है। यहाँ सैर करने आने वाले मुग़लिया फ़न तामीर की दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। कैनेडियन हाई कमिश्नर का कहना था कि लाहौरी जिंदा दिल हैं। टर्किश पुलिस का 6 रुकनी वफ़द कराची से लाहौर पहुंच गया। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर SHO सज्जाद मंच ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। टर्किश पुलिस का 6 रुकनी वफ़द तुर्की से बरास्ता कराची लाहौर पहुंच गया। वफ़द PIA की परवाज़ 302 के जरिए लाहौर पहुंचा है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर SSP सज्जाद मंच ने वफ़द का इस्तकबाल किया। टर्किश पुलिस का वफ़द वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत IG पंजाब और CCPO लाहौर से मुलाकात करेगा। अलहम्रा आर्ट गैलरी में इस्लामी फ़न खताती की नुमाइश हुई। खतात गज़नफ़र अब्बास आतिफ की खताती को देखने के लिए आने वाले अफराद ने उनके फ़नपारों में बेहद दिलचस्पी का इज़हार किया। मज़ीद अहवाल ज़ैन मदनी हुसैनी की इस रिपोर्ट में। साला खत्तात गज़नफ़र अब्बास आतिफ को बचपन से ही इस्लामी फ़न खताती से प्यार है। कहते हैं कि वो इस फ़न को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, इसीलिए अपनी पहली नुमाइश का इनेकाद उन्होंने अलहमरा आर्ट गैलरी में किया, जिसका इफ्तिताह गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर खलीकुर रहमान ने किया। उनका कहना था कि इस फ़न में मुनफरिद काम करना एक एजाज़ है। वो हमारे पास और इमेजेस के बड़े टूल्स आ गए हैं, लेकिन ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के ख़त हैं, जैसे ख़त कूफ़ी है, ख़त नस्तलीक है, ख़त मगरबी है, ये सारे पुरानी आयात को इजहार करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। नुमाइश में फ़न खताती के दिलदादा अफराद ने भी कसीर तादाद में शिरकत की और खत्तात के फनपारों को बेहद सराहा। इट्स फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई हैव सीन दैट सॉर्ट ऑफ फ्रेम्स और मुझे बड़ी खुशी है और जिस मेहनत है इनकी मैं हैरान हो गया हूँ। उनकी जो एक्सप्लेनेटरी थी, एक्सप्लेनेशन थी, उससे हमें काफ़ी हेल्प मिला, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली। इट्स अ वेरी गुड वे टू प्रमोट इस्लाम और स्पेशली जो हमारे खतूत हैं, ये हमारे जो कैलीग्राफी के हैं, बहुत हिस्टोरिकली हैं और इधर कलर मिक्सचर बहुत अच्छी पेंटिंग है। खत्तात गज़नफ़र अब्बास आतिफ का कहना है कि उन्होंने मुख्तलिफ ख़तों पर काम किया है और कुरानी आयात के साथ अहादीस भी लिखी हैं। कोशिश मेरी यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपना मुल्क का नाम रोशन करूँ और हद दर्जा जो है लोग इसको पसंद करें, ज़्यादा अच्छा काम हो। 2 रोज़ तक जारी रहने वाली इस नुमाइश में मुख्तलिफ अहादीस और कुरानी आयात के 95 फनपारे रखे गए हैं। फ़न खताती की ऐसी नुमाइशों के इनेकाद से जहाँ इस्लामी तालीमात से आगाही हासिल होती है, वहीं नए टैलेंट को सीखने के मौके भी मिलते हैं। कैमरामैन आसिफ खान के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी 42। सिक्योरिटी के बेहतर इंतजामात न होने की वजह से मॉडल टाउन कचहरी में वकला और जजेस अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए। दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट्स और ना ही मेटल डिटेक्टर्स, जबकि कचहरी 4 दीवारी से भी महरूम है। मॉडल टाउन कचहरी के वकला और जजेस सिक्योरिटी के लिए मुतअद्दिद बार पुलिस फोर्स में इजाफा और कचहरी के दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट्स की तनसीब कर चुके हैं।
नवाकोट पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़ स्कूल रोज़ा तहज़ीब-उल-इत्साल के इंतज़ामिया और असातिज़ा की जानिब से किंडरगार्टन केजी के तलबा अबीशा पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ उसकी वालिदा दादरसी के लिए सिटी 42 के दफ्तर पहुँच गई। अबीशा की वालिदा फलकनाज ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसकी बेटी एक हफ्ते की छुट्टियों के बाद स्कूल गई तो इंतज़ामिया समेत असातिज़ा ने इसे मुबैना तौर पर मार पीट कर घर वापस भेज दिया। ज़िले इंतजामिया की जानिब से गैर कानूनी मुस्बाखानों के खिलाफ कार्रवाई करने पर कसाब यूनियन ने डीसी ऑफिस में एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे में कसाब यूनियन के सदर मलिक इफ्तिखार, ओहदेदारों और कसाबों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन का कहना था कि ज़िले इंतजामिया की जानिब से निजी मुस्बाखानों पर छापा मारकर सेहतमंद गोश्त भी तलब किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ उनका लाखों का नुकसान हो रहा है बल्कि कारोबार भी तबाह हो रहा है। शहर में जराइम की क्या सूरत हाल है, ये आप जान सकेंगे सिटी क्राइम में। सूबाई दारुल हुकूमत में पुलिस नाकों के बावजूद डाकू शहरियों को लूटते रहे। डाकुओं ने घरों में घुसकर शहरियों को लाखों रुपए नकदी और तलाई जेवरात से महरूम कर दिया। मजीद बता रहे हैं नईम गिलानी इस रिपोर्ट में। सत्तू कतला के रहायशी शहरी जुल्फिकार अहमद ने बताया कि उनके बेटे को डाकू गली में यरगमाल बनाकर घर में दाखिल हो गए और अहले खाना को कमरे में बंद कर दिया। डाकू 60,000 नकदी, 10 तोले तलाई जेवरात, मोबाइल फोन और दीगर कीमती अशिया ले उड़े। इसी तरह D1 ब्लॉक टाउनशिप के रिहायशी सलमान एडवोकेट के अहले खाना को भी डाकुओं ने नकदी, जेवरात और दीगर कीमती अशिया से महरूम कर दिया। दूसरी तरफ डाकू कमर्शियल मार्केटों में वाक़े स्टोर्स पर भी हाथ साफ करते रहे। मैनेजर यूटिलिटी स्टोर सांदा मोहम्मद जाहिद के मुताबिक ग्राहकों के भेस में आने वाले 5 डाकुओं ने अमले और ग्राहकों को यरगमाल बना लिया। डाकू अमले और ग्राहकों से 50,000 रुपए, मोबाइल और दीगर कीमती अशिया लूट कर फरार हो गए। सांदा के इलाके शाम नगर फरीदुद्दीन रोड पर केक्स एंड बेक्स बेकर से भी डाकू 70,000 नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। डाकुओं ने मज़ाहमत करने पर कैशियर और सिक्योरिटी गार्ड को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। दूसरी तरफ लियाकताबाद के शहबाज को गाड़ी, मिलत पार्क के अरशद को मोटरसाइकिल और मुस्तफा टाउन के जिशान को डाकुओं ने नकदी और कीमती सामान से महरूम कर दिया। कैमरामैन टीम के साथ वक्कास अहमद और नईम गिलानी, सिटी 42। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 केनाल से बड़े घरों पर आयद लग्जरी टैक्स के नफाज के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर हुकूमत पंजाब और DG एक्साइज को दोबारा नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस नासिर सईद शेख की अदालत में लग्जरी टैक्स के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजारों के वकला ने दलाइल देते हुए कहा कि उनके मौक्कल पहले ही महकमा एक्साइज की जानिब से आयद प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद हुकूमत ने कवानीन के बरक्स 2 केनाल से बड़े घरों पर लग्जरी टैक्स आयद कर दिया है। एडिशनल सेशन जज सज्जाद अहमद की अदालती बेलफ ने अड्डा गुड ट्रांसपोर्ट सब्जाजार में छापा मारकर 7 रोज से महबूस 3 लड़कों नासिर अली, मोहम्मद अवैस और ताहिर अली को बरामद करके अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने अड्डे के मालिक के खिलाफ पर्चा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेशन जज सज्जाद अहमद की अदालत में मोहम्मद अकरम ने अपने वकील राय सिकंदर अली की वसातत से हस्बे बेजा की दरख्वास्त दायर की कि उसके बेटों नासिर अवैस और ताहिर को अड्डा ट्रांसपोर्ट सब्जाजार के मालिक हाजी खालिद ने 7 रोज से महबूस कर रखा है। सेहत आम से मुताल्लिक कुछ खबरें आप जान सकेंगे सिटी सेहत में। शालामार अस्पताल में जदीद मशीनरी और कैथेट लैब से आरास्ता कार्डिक सेंटर कायम किया जाएगा। शालामार अस्पताल इंतजामिया और बैनुल-अक़वामी कंपनी के माबैन मशीनरी की फराहमी का मुआहिदा तय पा गया। शालीमार मेडिकल कॉलेज के मुनक़िदा तकरीब में शालीमार अस्पताल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर प्रोफेसर अहमद वसीम यूसुफ और बैनुल-अक़वामी कंपनी के नुमाइंदे फारूक सलीम ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदे के मुताबिक बैनुल-अक़वामी कंपनी कार्डियक सेंटर की कीट लैब के लिए जदीद मशीनरी फराहम करेगी, जबकि सेंटर की तामीर और तश्कील पर तकरीबन 17 करोड़ रुपए लागत आएगी। अदाकार शान का कहना है कि जब हमारी हुकूमत भारत के साथ तिजारत कर सकती है, बॉर्डर्स पर शेड्स बन सकते हैं जहां से खाने पीने की चीजें आती हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए हम भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के साथ काम क्यों नहीं कर सकते। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए शान का कहना है कि वो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के साथ प्रोजेक्ट लॉलीवुड इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। इंडिया इस खिते में एक जाइंट है एज फार एज फिल्म मेकिंग इज कंसर्न। सो मेरे ख्याल में इस बात में अगर बिजनेसमैन फ़ायदा उठा सकते हैं, हुकूमत की पॉलिसीज़ में उनकी झलक नज़र आती है, तो फिर मेरे ख्याल में उनके साथ काम करने में कोई बुराई नहीं है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए आप पढ़ सकते हैं डेली सिटी 42। शहर की हर खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए।